Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us today. I'm Sanjana Mohanty from the Women Entrepreneurship Platform team at Niti Aayog. Uh, Today, we have gathered here for a webinar called The Women Speak, uh, COVID-19's Impact on Grassroots Women Social Enterprises. Seva Bharat and WEP at Niti Aayog have collaborated to bring this webinar together here for you to understand the impact of the pandemic on women-led enterprises at grassroots level. Before I begin, I'd like to introduce and tell you a little about the WEP and Seva Bharat. The Women Entrepreneurship Platform is Niti Aayog's flagship initiative to catalyze the entrepreneurial ecosystem for women. It is envisioned to be an aggregator platform that solves for the information asymmetry in the ecosystem. WEP aims to provide funding and financial assistance to women entrepreneurs, taxation and compliance support, entrepreneur skilling and learning, incubation and acceleration connects. Moving ahead, to tell you a little about Seva Bharat. Seva is a movement of 20 lakh women workers in the informal economy spread across 18 states. Seva Bharat is a national federation of all self-employed women's association in India. This Seva promotes about more than 140 plus women grassroots social enterprises across 10 sectors or more than 10 sectors, 3 of which are here today. We'll give you the introduction soon. Seva Bharat has also recently launched a learning hub, which is currently focusing on studying the impact of the COVID-19 on women workers in the informal economy through research and fundraising. Before we begin, I would like to inform our audience that today's webinar will be in Hindi and Gujarati. We have with us Saloni from the Seva team who will translate the Gujarati speakers' points into Hindi for our convenience. And for the convenience of English speakers in our audience joining us today, we have an associate from the Seva Bharat team who will be summarizing points made by the speakers in the comments below on the live. I would like to first begin by introducing Razia Sheikh, who is our moderator for this webinar. Razia Sheikh is a microbiologist and the CEO of Bastar Food Firm. Bastar Food runs a food manufacturing unit at Bastar, Chhattisgarh. About 4 years back, she started her work with SHG workers for the manufacturing of energy bars from Mahua flours, which were brought in as a local solution for malnutrition in the tribal belts. Bastar Foods has also started working at in Naxal affected areas to create job opportunities in the field of food science and technology and the youth. She has trained more than 600 SHG women through the initiatives run by Bastar Foods till date. So Razia ji, welcome here, and I will hand this over to you to take this webinar forward. Thank you so much, Sanjana. Thank you so much, Sanjana, and thank you for giving this beautiful opportunity to grow ourselves. And I'm very much glad to know about the grassroots level enterprises, work about the Seva Bharat, and how the women entrepreneurs are working at various states in India. So today I'm very much excited to know about the experience and my challenges and all those things which the females are facing at the age level. Let's introduce our women entrepreneurs and panelists. Before that, I welcome all my beautiful audience who are inside India or outside or abroad. Welcome to all of you, panelists, audiences, and all of them, you also. And let's introduce our panelists today. I welcome Anoita Ben, Salma Ben from Luwak, who are working at Delhi. Along with them, I also welcome Ila Ben, Dhanrodi Ben. कुछ हमारे जो आज पैनलिस्ट है वो ज़्यादा ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए हम ये जो कन्वर्सेशन है वो हिंदी में ही करते हैं. तो मैं स्वागत करती हूँ एनोइता बेन,
सलमा बहन जो कि रुआब से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली जैसे एरिया से अपने सारे जो आर्टिसंस हैं उन्हें वो हेल्प देती हैं। साथ ही हम गुजरात अहमदाबाद से लोक स्वास्थ्य मंडली के ईला बहन और जगलोरी बहन का भी स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ है भागलपुर बिहार से जो कि कृषक महिला संघ से जुड़ी हुई हैं, जिसमें दासंती बहन और पूनम बहन हैं। इन सारे पैनलिस्ट का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। आज हम उनसे इस कोविड के दौर में जो वो फेस कर रही हैं उनसे ही उन्हीं के बारे में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो खुद अपने बारे में बताएं। सबसे पहले हम रुआब से शुरू करते हैं। तो अनीता बहन और सलमा बहन, आपसे ये मेरी आग्रह है कि आप अपने बारे में खुद बताएं। और सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनोहिता है और मैं पिछले 6 सालों से सेवा के साथ जुड़ी हुई हूँ और पिछले 8 महीने से रुआब प्रोड्यूसर कंपनी को लीड एज ए सीईओ लीड कर रही हूँ, जिसमें करीब अभी हमारे पास 1000 शेयर होल्डर्स हैं, होम बेस्ड वर्कर्स जो कि वीवर्स है, आर्टिजन्स हैं और उनमें उनके हाथों का हुनर है, जिससे हम उनको एक बाजार से जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक उनको लाइवलीहुड, डिसेंट लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। Thank you so much, Anuita Ben, Salma Ben. Thank you. Hello. स्वागत है रुआब आपका आज के वेबिनार सेशन में। अब मैं लोक स्वास्थ्य मंडली की तरफ मूव करती हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने बारे में बताएं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम ईला है। मैं पिछले 27 साल से लोक स्वास्थ्य कोऑपरेटिव में काम करती हूँ। मैं लोक स्वास्थ्य कोऑपरेटिव की मैनेजर हूँ। लोक स्वास्थ्य कोऑपरेटिव में 1800 हेल्थ वर्कर बहने हैं और मिडवाइफ्स बहने इस कोऑपरेटिव की मेंबर्स है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम श्रमजीवी बहनें और उनकी फैमिली मेंबर को कम दाम में हेल्थ की सेवाएं पहुंचाए। हमारी कोऑपरेटिव के द्वारा 2 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एक जो है हेल्थ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा हम लोग 2 सोशल एंटरप्राइज चलाते हैं। उसमें से एक जो है वो हम लो कॉस्ट मेडिसिन शॉप्स चलाते हैं। अहमदाबाद में हमारी 3 दवाई की दुकानें हैं जो 24/7 चलती हैं। उसके अलावा हमारा आयुर्वेद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये यूनिट चलाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम एक वैल्यू चेन क्रिएट करें, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल कलेक्शन से लेके प्रोडक्शन और मार्केटिंग इन तीनों में बहनों की आमदनी बढ़ाए। उसके अलावा ये 2 जो सोशल एंटरप्राइज है उसमें से हमें जो भी आमदनी होती है वो हम हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू ईला बेन। इन्हीं की एक बोर्ड ऑफ मेंबर है धनगोरी बहन। हाँ, धनगोरी बहन। हेलो। हाँ जी। हाँ, નમસ્તે। મારું નામ ધનગૌરી છે નમસ્તે. અને હું સેવામાં 20 વર્ષથી આરોગ્ય સેવિકા તરીકે કામ કરું છું અને લોક સ્વાસ્થ્યમાં બોર્ડ મેમ્બર છું। આરોગ્યના અને સાથે સાથે આરોગ્યના શિક્ષણ સાથે જોડાયેલી છું અને એની સાથે સરકારી જોડાણના પણ કામ કરું છું। धन्यवाद धनगौरी बहन। आपका और ईला बहन का हार्दिक स्वागत है। मैं जल्दी से ट्रांसलेट कर दूं जो धनगौरी बहन ने हिंदी में। धनगौरी बहन 20 साल से सेवा में जुड़ी हैं। वो हेल्थ वर्कर का काम करते हैं। वो लोग स्वास्थ्य मंडली की बोर्ड मेंबर हैं
और लोक स्वास्थ्य मंडली में वो हेल्थ एजुकेशन का काम करते हैं और बहनों को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ने का काम। थैंक यू सलोनी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमारे साथ है सलोनी एंड नित्या, जो आज हमारे पैनलिस्ट को ट्रांसलेशन में मदद करेंगे, जिससे ऑडियंस जो है वो हमारे पैनलिस्ट को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं भागलपुर बिहार में जो संस्था है कर्णभूमि, जो कि महिला कृषक संघ के साथ कार्य करते हैं। तो इस संस्था से हमने यहाँ पे बुलाया है दासंती बहन और पूनम बहन को। दासंती बहन और पूनम बहन, आप अपने बारे में बताएं। हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम दसंती है और मैं कर्णभूमि में पिछले 2 महीने से काम कर रही हूँ और कर्णभूमि में जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। और कर्णभूमि जो है हमारी, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो एग्रीकल्चर, एग्री इनपुट और आउटपुट मार्केटिंग में काम करती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी पूनम बहन, अब हम अपना परिचय प्लीज देंगे। आप अपने बारे में बताएं। सभी को नमस्ते, हमारा नाम पूनम है। कर्णभूमि हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। मुंगेर और भागलपुर 2 जिला मिलकर इस कंपनी का गठन 750 बहन मिलकर गठन की है और इसमें किसान बहन का पहचान बढ़ाने का कार्य करती है और किसान बहन उनको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। हम कर्णभूमि खेती बाड़ी का काम, सब्जी का काम करती है, इनपुट और आउटपुट मार्केटिंग का काम कर रही है। इसमें हम सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। धन्यवाद, स्वागत है आपका आज के वेबिनार सेशन में पूनम बहन जी। अब हम दासंती बहन से सुनना चाहेंगे। मैनेजर के तौर पे तो काम व्यूअर्स, कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये रहे हमारे पैनलिस्ट, जो कि हमारे भारत के काफी ग्रामीण अंचलों से हैं और वास्तविक धरातल पर जुड़कर काम कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सारे ग्रामीण अंचलों में जहाँ पे थोड़ी बहुत नेटवर्क का इशू है, फिर भी उसके बावजूद भी ये जो हमारे ग्रामीण अंचल से हमारी जो बहनें हमसे कंटिन्यू कांटेक्ट में हैं और अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम ऑल्सो। तो जैसा कि अभी जो दौर चल रहा है, अब हम हमारा सेशन आगे बढ़ाते हैं। सबको पता है कि सारा देश ही नहीं, विदेश में भी कई ऐसे देश हैं जो कोविड-19 जैसे महामारी से ग्रसित है और इसी दौर में बहुत सारी समस्याएं जो टॉप क्लास के बिजनेस से लेकर ग्रास रूट लेवल के बिजनेस में भी दिख रहा है इम्पैक्ट। सो टॉप क्लास के बिजनेस की अगर बात करें तो उनके पास रिसोर्सेज हैं, बट ग्रासरूट लेवल पे जो हमारी बहनें कार्य कर रही हैं अपने बिजनेस से जो
का लोगों को आमदनी का मौका दे रही हैं। तो इनकी भी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं की समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो मेरा पहला जो सवाल है हमारे तीनों संस्थाओं से कि वर्तमान में वो किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रुआब से। तो रुआब से मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जो कोविड का जो दौर है इसमें उनको सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं? हेलो, हाँ हेलो, आप बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जब से ये कोरोना वायरस आया, जब से ये वायरस है, जब से समझ लो जैसे कि रुआब में इतनी दिक्कतें हैं, जितनी बहनों को काम मिलता था बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और जो कंपनियां काम देती थी तो वो भी नहीं आगे आ रही हैं, वो भी नहीं दे रही हैं। कुछ बहन है जो काम बिल्कुल नहीं आ पा रहा है किसी बहन के पास, तो बहुत सी काम। थैंक यू सलमा बहन एंड थैंक यू रजिया जी। ये सलमा बहन है जो आई थिंक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई थी। ये हमारी बोर्ड मेंबर हैं जो पिछले करीब 13 सालों से रुआब से जुड़ी हुई हैं और खुद भी हाथ का काम करती हैं। सो रजिया जी, जैसे सलमा बहन ने बताया कि चैलेंजेस तो नहीं, सिर्फ एक चैलेंज है वे हमारे पास, देयर इज नो वर्क इन द मार्केट। हाँ, बिकॉज सिंस ये जो कोविड इश्यू है इट्स ए पैंडेमिक और ये ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस लेके आया है, तो अभी देयर इज नो वर्क इन गारमेंट इंडस्ट्री। सो बहनों के पास तो काम ही नहीं है, अभी वो घर पे बैठी हैं जिससे उनका रोजगार चलता है, घर के 2 वक्त की रोटी चलती है। तो ये अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि मार्केट में काम ही नहीं है। और हम रुआब जैसी कंपनियां अभी छोटी सी कंपनियां हैं, मीडियम लेवल की कंपनी है और जो कि सप्लाई चेन में बॉटम में अभी अपना एक अस्तित्व रखती हैं। तो देयर इज नो वर्क इन द मार्केट। सबसे बड़ा चैलेंज यही है अभी। थैंक यू सो मच, आपने अपना चैलेंज शेयर किया। अब मैं लोग चाहूँगी कि उनकी क्या समस्या है। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी धनगौरी बहन। હા, કોવિડના લીધે થઈ અને અમારી જે દવાની દુકાનો છે એના ઉપર ઘણી અસર પડી છે અને દવાની દુકાનોમાં જે દવાનો જે સ્ટોક હોય એ અપૂરતો છે, એના લીધે વેચાણ અમારું ઘટ્યું છે। અને એક બીજી એ છે કે આયુર્વેદમાં અમારે લોકોને સેનેટાઈઝ બનાવવું છે, પણ એને રો મટીરિયલ જે છે એના પેકિંગ અને એનું જે સેનેટાઈઝના રો મટીરિયલ અને એના પેકિંગનું મટીરિયલ અમને મળવું મુશ્કેલ છે થોડું। અને જે કાચો માલ છે એ લાવવામાં અને જે કામ કરતા બહેનો છે એ બહેનોને આવવા જવા, એટલે બહેનોને કામ પર આવવું છે પણ એ બહેનોને આવવામાં ગભરાય છે કે અમને આનો કોરોનાનો ચેપ લાગી જશે તો, એટલે એમના ઘરના જે સભ્યો છે એમને પણ અમે સમજાવી અને પછી કામ પર એ લોકો તૈયાર તો થાય છે પણ એમના ઘરનાને પણ સમજાવવા માટે એ કરવું પડે છે, એટલે સમજાવી અને પછી કામ પર એ લોકો લાગે છે। એટલે અત્યારે કામ कह रहे हैं कि उनकी लोक स्वास्थ्य की जो दवाई की दुकान है उस पर काफी असर पड़ा है कोरोना की वजह से। जो दुकान में दवाई का स्टॉक था वो बिक नहीं रहा है, या जितना जल्दी नहीं बिक रहा है जैसे पहले बिकता था। और उनका जो आयुर्वेदा का यूनिट है लोक स्वास्थ्य मंडली का, वहाँ पे वो सैनिटाइजर का बनाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर का जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो सैनिटाइजर बनाने का हो या उसके पैकेजिंग की बॉटल्स जो है, उसका मिलना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा एक जो मुश्किल आ रही है जो धनगौरी बहन बता रही हैं कि वो बहनों को आने जाने की मुश्किल आ रही है। वो काम पर तो आना है, उनको ये डर है कि उनको कोरोना हो जाएगा। अगर वो समझ जाते हैं कि वो प्रिकॉशंस लेके आ सकते हैं तो उनकी फैमिली के लोग नहीं समझ पाते, तो उनको ये समझाना भी एक मुश्किल बात है। और जो આયુર્વેદની જે પ્રોડક્ટ અમે લોકો બનાવીએ છીએ એ સંસ્થા અને અલગ અલગ સંસ્થાઓ છે અને બહેનો અને ડોક્ટરો દ્વારા એનું વેચાણ થાય છે। એ વેચાણ લોકડાઉનના લીધે અમારું
બહેનો જે ખરીદી કરવી છે એ ખરીદી કરી શકતા નથી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની અમને તકલીફ વધારે છે એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના લીધે થઈને અમે જે અમારો માલ લાવવો મેળવો હોય બહેનોને જવાવાનું છે એ અમને તકલીફ વધારે પડે છે। जुड़ते ही धनगौरी बहन कह रही हैं कि जो दवाई का बेचन जो बहनें खुद करती हैं उसमें भी मुश्किल आ रही है, ट्रांसपोर्ट की भी मुश्किल है, तो हम दवाई इधर से उधर ले जा नहीं पाते, तो कोरोना की वजह से ये भी दिक्कत है। Thank you, Saloni. Thank you so much for translation. हाँ धनगौरी बहन। Hello. Okay. Hello. Okay. Thank you so much. Hello. थैंक यू सो मच धनगौरी बहन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चुनौतियों के बारे में बताया। आई थिंक ये चुनौतियां भारत के अन्य क्षेत्र में भी और भी जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके साथ भी यही है। अब हम पूछना चाहेंगे कर्णभूमि से, क्योंकि वो किसानों से जुड़ी हुई संस्था है, तो उन लोगों की क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि खेती बाड़ी का जो अभी दौर है, कुछ फसल पक चुकी हैं और कुछ फसल अभी नेक्स्ट सीजन के लिए, तो इनकी भी समस्याएं हैं, तो ये कौन सी इनकी चुनौतियां हैं? ये देखिए सब्जी का ये तो कच्चा फसल है, होता हाँ कर्णभूमि। हेलो हाँ जी, हाँ हम पूनम हाँ बोल जी, रहे हैं पूनम बहन कर्णभूमि से। बोले। हाँ हाँ तो ये देखिए हमारी बहनों का खेती तो ये सब्जी का खेती है, जिसमें कि सब्जी हुआ और ये मतलब क्या कहता है आने जाने का साधन नहीं होने के कारण उनका सब्जी खेत में सड़ गया, और क्या कहता है ऑटो नहीं मिल रहा था उनको, बहुत दूर था, जैसे कि गांव विलेज था उनका, तो फिर विलेज से आने में मेन टाउन में कैसे बेचती, उनको आने जाने में ट्रांसपोर्ट का भी दुगुना दुगुना रेट बता रहा था लोग, इसके कारण उनका सब्जी खेत में ही सड़ रहा है, उनको बहुत घाटा हो रहा है। और क्या कहता है इसमें लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार से जो भी योजनाएं होगी तो हम लोग उनसे जाकर के बोलेंगे क्या कुछ उनकी योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को उनके तक लिंक तक पहुंचाएं, जो कि उनको घाटा लगा है इसमें उनको कहीं ना कहीं रिकवर हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पर समस्या आप लोगों को परमिशन की है कि आपको सरकारी विभाग से अपनी सब्जियों को शहर में ले जाके देने में परमिशन नहीं मिल रही है, सही? के लिए कम मिल रहा है ना, सुबह वे घर से निकलती है, आने जाने का साधन नहीं है, पैदल आती है, पैदल आने से जब मतलब 12 बजे तक मार्केट खत्म कर दिया जाता है कि सब लोग को प्रशासन कहते हैं जाओ घर, तो बहन को आने और जाने में ही समय खत्म हो जाता है, जिससे कि उनका सब्जी पूरा नष्ट हो जाता है। ओके, ये सब की समस्या है। वाकई ये सारे आप लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों से आप लोग गुजर रहे हैं, इन चुनौतियों को रोज आप सामना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पूनम बहन, आपने बहुत अच्छे से अपनी समस्याओं के बारे में बताया। मेरा जो अगला सवाल है, सारे जो हमारे पैनलिस्ट है ये हर एक से रहेगा कि इस वक्त पे जैसे कि अभी आपने अपनी चुनौतियां बताई हैं, तो इन समस्याओं से जूझने का भी तो रास्ता होगा, या कुछ आप लोगों की रणनीति होगी, या कुछ ऐसे नए विचार होंगे कि हाँ इन समस्याओं से कैसे बाहर आ सके, ऐसी कौन सी रणनीति बनाए कि हमारी समस्या को हम ही सुलझा सके, क्योंकि समस्या हमारी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी हम ही देते हैं। तो आप लोगों का खुद का क्या इसमें मतलब नजरिया है? सबसे पहले रुआब आप बताएं। सलमा बहन, आवाज आ रही है? हाँ अब बोलिए। हाँ सलमा बहन बोलिए। अभी तो रुआब ने ये सलूशन निकाला है, थोड़ा खाली बैठी हुई हैं, ज्यादातर तो सभी बैठी हुई हैं, कोई किसी के पास काम नहीं है,
लेकिन अभी आप थोड़ा जिसके पास, जिन बहनों के पास थोड़ी मशीनें हैं, उनको मास्क बनाने को दिया गया है। अब उन बहनों के लिए मास्क दिया गया है, अब उनसे वो थोड़ा काम निकाल लेंगे वो बहनें। लेकिन जिनके पास मास्क मशीनें ही नहीं है, वो तो बहनें खाली बैठे हैं ना, लेकिन वो थोड़ा है, ये नहीं है सारी बहनों को काम दिया जाए। यस अनोहिता। हमारे मेनली आर्टिजन्स और वीवर्स हैं, हाँ, जो शेयर होल्डर हैं। आर्टिजन्स वो भी जो हाथ का काम करते हैं, लाइक एम्ब्रॉयडरी वर्कर, अडारी वर्कर्स, हाँ। सो बेसिकली वो उतने सिलाई के काम में बहुत वो नहीं होते, एफिशिएंट नहीं होते हैं। एंड वीवर्स तो वीवर्स जो है वीवर का काम करते ही हैं। बट अभी जो इस ग्लूमी टाइम जो चल रहा है, लेकिन वो भी है कि हमें कुछ ना कुछ तो, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आफ्टर ऑल ये उनकी जीविका का सवाल है। अगर उनके पास थोड़ा भी कुछ नहीं आएगा तो फिर उनके भूखमरी भी आ सकती है आफ्टर ऑल। सो अभी हमने एक पूरा जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजी बोलो आप, और या फिर चेंज ऑफ ट्रेंड बोलो, जो रुआब एज एंटरप्राइज ने अपनाया है, कि जो बहनें हाथ से काम करती थी, हमने उनको थोड़ा सा पुश किया कि आप स्टिचिंग के काम में थोड़ा सा चेंज ऑफ शिफ्ट कर लो। बिकॉज अभी सलमा बहन ने जैसा बोला, बहनें आरी और फ्रेम पे काम करने वाली बहनें हैं, और स्टिचिंग का काम जो है अभी ये करंट डिमांड है मार्केट में, बिकॉज हेल्थ सेक्टर की ये क्राइसिस है। सो एंड सारे डिपार्टमेंट, सारे हॉस्पिटल्स आर रनिंग शॉर्ट्स ऑफ क्लोथ मास्क। तो उसमें हमने बहनों को इनकरेज किया कि आप ये मास्क बनाने का काम ले लो। बट ये भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये मेनली बहनें आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं। तो फिर हमने पहले शुरू किया रीमैपिंग की, किन बहनों के पास मशीन्स हैं। फिर बहनों को थोड़ा सा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग देखी कि आप ये मास्क की ऐसे करो, बिकॉज हर जगह के अपने डिजाइन, अपने सैंपल्स, अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो उनको वर्चुअल ट्रेनिंग देके उनको मास्क बनाने के लिए आगे करना। तो इन सारी चीजों में हमें काफी उनको एनकरेज करना पड़ा, काफी डिफिकल्टीज आई। बट या अब तक हमने काफी रुआब की बहनों ने मिलके करीब 50,000 मास्क बनाए हैं। कुछ हमें जिम के थ्रू ऑर्डर आए हैं, डाटा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उनके थ्रू कुछ ऑर्डर्स आए हैं। कुछ क्लाइंट हैं हमारे, प्राइवेट क्लाइंट्स हैं, जो उन्होंने अपने किया है बिजनेस, सो कुछ उनके थ्रू प्राइवेट ऑर्डर्स आए हैं। तो ये बहनें मिलके, बट बहनों को तैयार करना एक चैलेंज था, और उनको इनकरेज करना कि कोई भी बंदा जो एक एग्जिस्टिंग स्किल है उनके पास, बस सडनली उनको बोला जाए कि आप ये काम छोड़ के ये करो। सो एक चैलेंज होता है। बट इस चैलेंज को हमने फाइट किया, बहनों को रीस्किल किया और इनकरेज किया मास्क मेकिंग में। प्लस पीपी प्रोडक्ट्स भी हम बना रहे हैं, लाइक सर्जिकल गाउन्स। तो वो आजकल हम मोर लाइक इको फ्रेंडली एंड कपड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। सो नाउ देयर प्लास्टिक भी आप कितना यूज करोगे, फिर उसको भी डिस्पोज ऑफ करने का एक है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉशेबल फेस मास्क। यू कैन यूज देन वॉश और यूज हो सकता है, तो डिस्पोज ऑफ की उतनी समस्या नहीं आती है। सेम वे में हम पीपीई किट्स में और सर्जिकल गाउन बना रहे हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज अ सेफ्टी गाउन जब आप डॉक्टर्स इलाज करते हैं कोविड पेशेंट का। देन हुड हो सकता है, दैट यू कैन कवर योर फेस। देन देयर इज अ शू रैक, शू कवर, सॉरी। So these are the new things that we have taken up abhi right now in this crisis. Wow, great number of mask आपने जो बनाए हैं वो लाइक काफी बड़ा काम किया है। सो थैंक यू सो मच इलाबेन, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बस इसमें एक मेरा और छोटा सा एक डाउट है कि आप अपने जो कारीगर हैं उनको आप कच्चा माल कैसे प्रोवाइड करवा पा रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरफ से बंद है। तो कच्चे माल तो लगेगा ही लगेगा इन मास्क के लिए। तो आप इसमें किस तरीके से अपने आप को फिट करती हैं कि आप उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें? बिल्कुल रज़िया जी, बहुत ही अभी के सिचुएशन में बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, और आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस भी क्यूरियस होंगे इसको जानने के लिए। बिकॉज अभी ये कंप्लीट लॉकडाउन है, मूवमेंट्स इज रिस्ट्रिक्टेड, हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। बट आई थिंक इस पे हमारे जो बाकी सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है अभी, उनके अलग सवाल हो सकते हैं। बिकॉज सिंस रुआब का जो अभी मेन फंक्शनल एरिया दिल्ली है, एंड दिल्ली इज कैपिटल, एंड दिल्ली की गवर्नमेंट इज थोड़ी सपोर्टिव है। तो हमारे रनर होता है हमारे लाइक टीम स्ट्रक्चर में, हमने उनको पास दिला रखा है गवर्नमेंट से बात करके।
एंड देन कुछ पुराने वेंडर्स हैं, बिकॉज रुआब 10 साल पुराना एंटरप्राइज है जो दिल्ली में काम कर रहा है, तो वेंडर्स से लॉन्ग एसोसिएशंस हैं, तो थोड़ा वेंडर्स भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि स्पेशल कॉज के लिए काम हो रहा है, इट्स हेल्थ क्राइसिस एंड एवरीबडी वांट्स टू हेल्प ईच अदर। सो कभी कभी वेंडर्स को रात में शॉप खोलनी पड़ती है, देन हमें कपड़ा देना पड़ता है, हमारा रनर रात में जाके कपड़ा उठाता है, तो अगेन देयर इज चैलेंजेस एट द फील्ड, बट दीज थिंग्स करके, बट हाँ बीइंग द दिल्ली थोड़ा सा हेल्पफुल है, बिकॉज जियोग्राफी के माध्यम से द गवर्नमेंट इज सपोर्टिव, सो आई थिंक दैट्स व्हाई फिर वो जाके हम बहनों को पहुंचाते हैं उनके घर पे, बिकॉज बहनें भी होम बेस हैं, हमें उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, सेफ्टी मेजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल। रॉ मटेरियल बहनों के घर पे पहुंचा के फिर वहां से प्रोडक्ट बनते हैं, वहां से पिकअप करके देन फिर डिलीवरी होता है अपने एरियाज में। Wow, that's a great thing that you are doing there. Really great work that somehow your organization is facilitating all your artisans. Thank you so much. अब हम लोक स्वास्थ्य मंडली से जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? जी हाँ जी हाँ जी हम लोगों ने हाँ जी लोक स्वास्थ्य में अभी हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर बनाना शुरू किया है। उसके अलावा हम लोग सेवा फेडरेशन की जो हमारी कोऑपरेटिव का संघ है, उस कोऑपरेटिव और वो कोऑपरेटिवों का कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है, मार्केटिंग में वो हेल्प करती है, बिजनेस डेवलपमेंट में भी वो काफ़ी मदद करती है हमें। तो उनके द्वारा, उनके सपोर्ट से हम लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो, उसमें वो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी फार्म इजी और इंडिया मार्ट में हमारी प्रोडक्ट को हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसके द्वारा हम हमारा जो भी सेल्स है वो आगे बढ़ाए। उसके साथ में सेवा फेडरेशन की हेल्प से हम लोगों ने हमारे मेंबर के लिए हेल्थ किट और राशन किट जो है उसके लिए हम लोगों ने डोनेशन रेज किया है। तो अभी हमने ये किया है और ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे सोच रहे हैं कि ऐसे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट रखें और उनके द्वारा हम आगे अपना बिजनेस बढ़ाएं। तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प ले रहे हैं इस कोरोना के जो महामारी का जो दौर है उसमें। थैंक यू सो मच। आपने अपना एक नया इनोवेटिव आइडिया जो अभी कोविड में घर बैठे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत से संस्थाओं को या बहुत से एसएचजीज को इस एरिया में हेल्प करेगा। थैंक यू, ग्रेट सजेशन आपकी तरफ से। एक और भूल गई मैं कि हमारी जो मतलब सेवा की भगिनी कोऑपरेटिव है वो भी मास्क बनाती है, तो हम लोग मतलब फेडरेशन के साथ रह के हम वो मास्क अपनी दवाई की दुकान के द्वारा उसकी बिक्री करती है और हमारे मेंबर्स जो है उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ किट में और दवाई की दुकान के द्वारा। ठीक, सो काफ़ी अच्छा चेन बनाया है और इसमें जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है लोगों के लिए लो कॉस्ट के मास्क का होना अवेलेबल, साथ में लो कॉस्ट सैनिटाइज़र जो है वो सैनिटाइज़र का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स जहाँ पे भी हमारे अदर एसएचजीज काम कर रहे हैं वो भी अपने अपने एरियाज़ में लिमिटेड अमाउंट में ही सही इस तरीके के काम भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा सजेशन है, सुझाव है जो हमारी और भी बहनें कर रही हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ बिहार कर्णभूमि से कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? हेलो, हाँ संदीप, हाँ जी, आप बता रहे हैं तो हम लोग पहले हेलो, हाँ जी, ओके, मैं बसंती हूँ कर्णभूमि से और हाँ जी, बेसिकली हमारी ये स्ट्रैटेजी हमारी ये स्ट्रैटेजी है
कि लोकल मार्केट है, उनके गांव के आसपास जो लोकल हाट है उससे कनेक्ट करके उनका सेलिंग किसी तरह भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग मंडी से कनेक्ट कर पाए, मेन मंडी से, और जो हमारी बड़ी मार्केट है सब्जियों की, तो उससे कनेक्ट करने के लिए हम लोग को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसके लिए हम लोग पासेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक हमारी बहनें जो है वो टेम्पो हायर करके और अपने विलेज से मेन मार्केट का अपना जो प्रोडक्ट है उनका जो भी एग्रीकल्चर का, उसे वो सेल कर सके। और जी हमारी बहनों ने मिलके ये अपनाई है कि वो लोग अपने ई रिक्शा चल रहे हैं गांव में, वो ई रिक्शा हायर करके और उसको डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं अपने वेजिटेबल्स का। जो आस के छोटे मोटे हाई सोसाइटी एरिया है उनके विलेज के, तो वहाँ पे वो डोर टू डोर सेलिंग कर रही हैं। और चौथी स्ट्रैटेजी हम लोग ये अपना रहे हैं कि जो हम लोग की खरीफ की प्लानिंग है, तो क्योंकि हम लोग अभी कोई भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे एक जगह, तो उसके लिए हम लोग जूम कॉल, व्हाट्सएप कॉल और कॉन्फ्रेंस कॉल करके अपनी खरीफ की प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी माइक्रो प्लानिंग आगे हम लोग कैसे उसको लेके जाएंगे। तो फिलहाल में हम लोग ये कुछ चीज़ें अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। That's really great. ये वाकई में कि ग्रामीण अंचल में भी आज हमारी जो बहनें हैं वो डोर टू डोर काम कर रही हैं। जूम कॉल जैसे तो ऐप जो हैं वो अपने ग्रामीण अंचलों में भी यूज़ हो रहा है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट हमारे लिए। रियली आज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण अंचल में इतनी तेज़ी से बिजनेस चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली आई होप कि ये दौर जल्द से जल्द वापस आ जाए। जी पूनम मैम। हाँ, ये है कि अभी दो बहन मतलब सब्जी बेच पा रहे थे, तो ये तो दिक्कत है ही उनके साथ, सबसे बड़ा समस्या है। लेकिन हम लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा उनको वीडियो दिखा करके मास्क किस तरह से बनाना चाहिए, बहन को कितना लंबाई चौड़ाई लेना चाहिए, ये भी हम लोग शुरुआत कर दिए हैं कि बहन कुछ घर में बैठ के भी अपना रोजगार करे। That's a great thing। यानी कि ये बहुत अच्छा सुझाव है कि ग्रामीण में जो औरतें कम पढ़ी लिखी हैं वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू ई लर्निंग कर रही हैं। रियली ग्रेट, बहुत महान काम हो रहा है। उसमें लंबाई कितना देना चाहिए, चौड़ाई कितना देना चाहिए, उसका पाइपिंग किस तरह से लगाना चाहिए, ये सब उसको व्हाट्सएप करके वीडियो करके उनको बताएं, और वो भी मास्क बनाने का शुरुआत कर दी है। सब्जी के साथ सब्जी का खेती करते हुए ये भी कर रही है। हमारी बहनें जूम कॉल करके मीटिंग करती हैं और आगे की जो हमारी खरीद की प्लानिंग है उसको भी वो कर रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने बारीकी से काम चल रहा है। एक चीज ये और हम लोग घर बैठे जागरूक भी कर रहे हैं कि हम लोग इसमें किस तरह से बचाव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी फील्ड नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा उन लोग को, सारे बहन को जागरूक भी कर रहे हैं कि बहन आप लोग को मास्क लगाना चाहिए, दूरी कितना बना के रहना चाहिए, आप लोग का शरीर किस तरह से उपयोग करना चाहिए, हम लोग ये जागरूक मोबाइल। रियली नाइस पूनम बहन, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भी लोगों को इससे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस तरीके से और भी महिलाएं ऐसे वीडियोस के थ्रू घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन क्लासेस चला सकती हैं। रियली ग्रेट वर्क आप लोगों का। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हर एक को अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों को किस तरीके की मदद की अभी ज़रूरत है? क्योंकि अभी कोविड का जो संक्रमण है वो चारों तरफ फैला हुआ है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, कच्चे माल की कमी, मजदूरों की कमी, ये सारी समस्याएं हैं। तो आप लोगों को आपके ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें वाकई में बहुत मदद की ज़रूरत है? आप शुरू करें। सलमा बहन आप हाँ, आई थिंक आई वाज जस्ट चेकिंग इफ सलमा बहन इज देयर। सलमा बहन आप बोलना चाहोगे कुछ?
I think Razia ji, I will start. I think Salma Behan is okay. So basically, Razia ji, it's like बहुत ही great सवाल आपने पूछा है. It's very relevant because अभी तो somehow we are just going to manage to get going. हमारा जो अपना काम चल रहा है अभी, और उसमें से भी अगर हम एक जरूरत की बात करें और सरकार से या फिर हमारे जो CSR हैं, अदर कॉर्पोरेशन से उनसे हेल्प की बात करें, तो वी वुड नीड हेल्प इन 2 phases आई गेस राइट नाउ. एक जो अभी हमारी नीड है दैट इज शॉर्ट टर्म नीड, जो हमें हमारी एंटरप्राइजेस को एंड हमारे घर खाता कामगार जिनको हम होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं उनके लिए होगा. 6 to 8 मंथ जो हमारा ये शॉर्ट टर्म पीरियड होगा, उसमें अभी इमीडिएट जो होगा, हम मास्क का काम कर तो रहे हैं बट मास्क का काम इज नॉट वेरी कॉस्टली अफेयर. हाँ, इसमें हम हार्डली बहनों को एक रोजगार दे पा रहे हैं. हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट होता है, एक कंपनी को रन करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं, वो वी आर हार्डली एबल टू कवर थ्रू दिस मास्क का काम. सो अब उसके लिए अगर कुछ हमें एक तो कंटिन्यूस एक ऑर्डर की जरूरत है. एग्जांपल अभी नीति आयोग के साथ हमारी पिछले कुछ हफ्तों में बात हुई थी, उन्होंने हमें PNG से लिंक कराया जिसके थ्रू हमें रॉ मटेरियल मिलेगा. सो दैट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट. अगर हमें कोई आता है फर्दर और ऑलरेडी कंपनी के पास रॉ मटेरियल है तो उसकी कॉस्ट बच के ओवरहेड कैन बी मैनेज इन दैट कॉस्ट. सो एक तो वो होगा. एंड द सेकेंड, capacity building and reskilling of these home based workers and artisans will be needed. अगर सरकार उस पर थोड़ा फोकस करे तो वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ा हेल्प होगा. अगर रॉ मटेरियल भी डायरेक्ट अगर प्रोवाइड होता है तो ये सारी चीजें होंगी. मेन लिंकेजेस विद द मार्केट, मेन मार्केट से जो एक लिंकेजेस होता है वो बहुत जरूरी होगा अभी, बिकॉज सरकार के बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं हॉस्पिटल से, इवन द गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑल. अगर इन सोशल एंटरप्राइजेस को डायरेक्ट ऑर्डर्स भी मिलने लगे तो वो अभी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी. कंटिन्यूअस वर्किंग ऑर्डर भी मिलते रहे तो बहनों को डायरेक्ट काम हो जाए. एंड लॉन्ग रन में अगर एक पेरोल सब्सिडी, बिकॉज एक एंटरप्राइज को सस्टेन करने के लिए जैसा मैंने बोला ओवरहेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट मैनेज करने पड़ते हैं. सो दीज थिंग्स अगर एक हेल्प मिल जाए, सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प राइट नाउ फॉर द एंटरप्राइजेस. True, completely. So ये आप लोगों को आपके ही एरिया के जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए जो हेल्प आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, वेरी ग्रेट. आई थिंक अदर्स भी इसी चीज़ में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. या ओवर टू लोक स्वास्थ्य मंडली, आप लोगों को किस तरीके की हेल्प की ज़रूरत है? हेलो, हमारा जो टैक्सेशन सुनाई दे रहा है? हाँ जी बोलिए. सबसे पहले मुझे लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो टैक्स होता है, सरकार का जो इनकम टैक्स और GST है, उसमें हमारे जैसे जो एंटरप्राइज है उनको राहत दी जाए. दूसरी बात कि PF प्रोविडेंट फंड जो है, जिसमें अभी सरकार ने राहत तो दी है 3 महीने के लिए कि भाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ये कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार देगी, और उसमें एक क्लॉज रखा हुआ है कि वो 100 लोग होंगे तभी वो एप्लीकेबल होगा. तो मुझे लग रहा है उसमें अगर 100 से कम है, हमारे जैसे एंटरप्राइज में अगर 100 से कम लोग भी है तो उनके लिए भी ये लागू हो, जो सरकार ने राहत दी है वो. उसके अलावा ESIC का कंट्रीब्यूशन जो संस्था और अपनी बहनें खुद दे रही है, वो भी अगर सरकार के द्वारा दिया जाए तो भी हमारे लिए एक सपोर्ट रहेगा. उसके साथ साथ जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर है, मास्क है या PPE किट है, जो जिसका प्रोडक्शन हमारी खुद कोऑपरेटिव कर रही है, तो वो प्रोक्योरमेंट जो है वो खास वुमेन्स कोऑपरेटिव जो बना रही है तो उनको प्राधान्य दी जाए, उनसे ही वो परचेस किया जाए. वो एक मुझे लग रहा है. उसके अलावा जो भी हमारी कॉस्ट रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ये जो दौर चल रहा है उसमें काफ़ी इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा, तो बट ऑब्वियसली हमारे बिजनेस के ऊपर भी इसकी इफेक्ट होती ही है. तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट रहती है वो तो वही की वही रहती है. तो अगर फिक्स कॉस्ट में 6 महीने तक कहीं से सपोर्ट मिल जाए, उसके साथ में अगर हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें डिजिटलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा. हमारे बिजनेस को हम डिजिटली डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट और हमारी टीम के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बहुत सारी
जरूरत होगी, तो उसमें हम सपोर्ट चाह रहे हैं। ग्रेट, काफी अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं। टैक्स के बारे, टैक्स रिलैक्सेशन में, प्रोविडेंट फंड के ऊपर में जो नीतियां हैं, या फिर वुमेन कोऑपरेटिव के थ्रू जो आप लोगों को लाइक ज़रूरत है, इसमें काफ़ी हटके हैं पॉइंट्स, लेकिन सारे लोगों के लिए बेसिक ज़रूरत के पॉइंट्स हैं ये। रियली ग्रेट। अब मैं कर्णभूमि से सुनना चाहती हूँ या फिर उनसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को किस तरीके की हेल्प की ज़्यादा आवश्यकता है। जी पूनम बहन। हमको तो सरकार से अपील करेंगे कि ट्रांसपोर्ट के लिए परमिशन करे, उत्पाद जो हो रहा है वो मंडी तक ले जाए। और दूसरा है क्या, लोन जो है, कुछ लोन का मतलब के तहत कुछ पैसा मिल जाए जो कि बहनों की खेती बाड़ी सुचारू रूप से फिर से ढंग से, जैसे कि खाद बीज ये सब आसानी से उन लोग को मिल जाए, छोटा छोटा लोन मिले, आसानी से वे लोग बीज खाद खरीदे और फिर अपना खेती बाड़ी ढंग से करे। वहाँ के घर तक खाद से पहुँचाने का भी सहयोग करें पर मिले, ये है मेरा। तो अगर कृषकों की हम बात करें, आप महिला कृषकों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि फिर आपके खेतों में जो उत्पाद हो रहा है वो उत्पाद का मंडी तक पहुंचने के लिए जो परमिशन मिलनी चाहिए वो आपको वो परमिशन मिले, साथ ही कम ब्याज दरों पर लोन भी मिले, जिससे आप लोग आने वाले समय के लिए खेती के लिए जो बीज है, खाद है, या फिर अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे सिंचाई हो या फिर किसी भी तरीके की उन चीज़ों पे आप फिर से सुचारू रूप से काम कर सके। राइट, ग्रेट। काफ़ी अच्छे सुझाव है, काफ़ी लाइक आपकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी भी हैं। तो ये हर एक क्षेत्र से जो संस्थाएं काम कर रही हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो काफ़ी बहुत ही समझदारी के साथ अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे रख रहे हैं। तो इन्हीं से मेरा एक और सवाल है कि ये लॉकडाउन जो है आज नहीं तो कल ख़त्म होगा ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वक्त तक तो इसका असर सब बिजनेस पर रहेगा, चाहे छोटे बिजनेस हो, मैक्रो हो या फिर माइक्रो हो, लघु जो बिजनेस है, चाहे हमारे हैं या आपके हैं, सब पर आने वाले वक्त में कह सकते हैं 3 महीना या 6 महीना या 1 साल तक इसका असर देखा जाएगा। तो इस लॉकडाउन के बाद आप लोगों जो है अपनी, हर कोई अपने जो बिजनेस है वो पटरी पे ही चला रहा है, तो वापस अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने के लिए या फिर से एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ रणनीतियां अपनाई होंगी, या फिर कुछ ना कुछ रणनीतियों का आपने सूत्रपात किया होगा या प्लान किया होगा। तो ये कौन सी रणनीतियां हैं आप, ताकि अगर आप अपनी रणनीति बताते हैं तो हो सकता है कि दूसरी जो महिलाएं जो बैठ के अपना काम कर रही हैं उन्हें भी कुछ आइडिया आ जाए। तो हम आपकी ही रणनीतियों के बारे में जानना चाहेंगे। अनोहिता बहन, आपकी क्या रणनीतियां हैं पोस्ट लॉकडाउन के बाद? थैंक यू रजिया जी। बिल्कुल रणनीतियां तो है और बनानी पड़ेंगी, नहीं तो बहनों का एंटरप्राइज कैसे चलेगा, बिजनेस है। और सो बेसिकली जैसा मैंने बोला कि अभी नीड हमारी 2 तरह की है। शॉर्ट टर्म नीड है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, देन आएगा लॉन्ग टर्म नीड जो कि पोस्ट कोविड एरा, हाँ, जब ये कोविड खत्म होगा तो उसके बाद हम कैसे मार्केट बैक टू नॉर्मल होना शुरू होगा। आज ना कल इकोनॉमिक को तो संभलना है ही, नहीं संभलेगा तो फिर दिक्कत होगी। सो उस तरीके में फर्स्ट तो हमारी रणनीति ये है कि हम हेल्थ सेक्टर के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम बनाते रहेंगे आगे भी, क्योंकि उसकी जरूरत अब इस पूरे साल तो रहेगी। दैट्स वन थिंग। और उसमें भी हम वेरिएशंस एंड इनोवेटिव चीजें करेंगे, लाइक हमने किड्स मास्क डिजाइन करने शुरू किए हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सम टाइम। तो एडल्ट के मास्क तो हैं, बच्चों के लिए भी हमने डिजाइन करना शुरू किया है, थोड़ा पेपी कलर्स एंड ऑल। तो एक हेल्थ सेक्टर के लिए प्रोडक्ट हम बनाते रहेंगे, उसमें भी हम एड ऑन करेंगे, पीपी किट में वेरिएशंस लाएंगे और नीड बेस्ड जो भी आएगा। सेकेंड, अभी से हमने पैरेलली अपना बैकग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है सीजनल एंड फेस्टिवल गिफ्ट्स के लिए।
फॉर एग्जाम्पल कोविड खत्म होगा, दिवाली सर पे है, दिवाली आएगा उसके बाद, बिकॉज आप लॉकडाउन से डील करते करते दिवाली के आसपास पहुंच जाओगे, यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि दिवाली में कॉर्पोरेट्स गिफ्ट देते हैं, ऑफिसेस देते हैं. सो ये भी है कि वी अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा तो उतना नहीं होगा गिफ्टिंग ट्रेंड लाइक पिछले साल की तरह. इस बार इकोनॉमी थोड़ी मरी हुई है तो थोड़ा स्लो होगा, बट होगा. लोग त्योहार तो मनाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाएंगे. सो हमने दिवाली गिफ्ट बास्केट पे काम करना शुरू कर दिया है. और आइडिया इज ऑल अबाउट कि उस गिफ्ट बास्केट में जो आइटम्स होंगे हम बहुत सोच समझ के रखने वाले हैं. हम कुछ भी ऐसे नहीं रखेंगे, दैट शुड बी फंक्शनल, और थोड़ा हेल्थ से जुड़ी किट्स हो वो रहेगा. और दिवाली के बाद क्रिसमस अभी आएगा, उसके बाद फिर क्रिसमस के लिए. और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वेबिनार को अगर कोई कॉर्पोरेट्स देख रहे हो, अलग अलग डिफरेंट कॉर्पोरेशंस देख रहे हो, CSR एंड ऑल, तो दे उनके लिए एक ट्रेंड होगा दिवाली गिफ्ट्स का, एंड देन क्रिसमस डेकोरेशंस आइटम एंड ऑल, वो सारे कुछ हम बना सकते हैं. तो अगर हम होम बेस्ड वर्कर्स को हेल्प करना चाहते हैं तो सिर्फ हम लेट्स नॉट हेल्प विद द ओनली मनी एंड ऑल, लेट्स हेल्प विद द वर्क ऑल्सो. बिकॉज अगर ये ऑर्डर्स इन एंटरप्राइज को जाएगा तो ये बहनें ही काम करेंगे उस पर. सो एक ये मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी हमारी ऑडियंस से कि आप अभी से हमें कंसिडर कर सकते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि हमारी अपनी लेवल पे तैयारी हमने शुरू कर दी है दिवाली गिफ्टिंग का एक बास्केट्स के लिए. देन ये क्रिसमस गिफ्ट के डेकोरेशन आइटम्स कैसे हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमारी जो रणनीति है कि कैसे हम इसको पोस्ट कोविड में अपने बिजनेस को एक जो मैनेज करने की कोशिश करेंगे, एंड उनके प्लान अकॉर्डिंगली होंगे. ये सारी चीजें काफी अच्छे प्लान्स हैं आपके अनुहिता जी. रियली सुनने के बाद मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि अब जो हमारे फेस्टिवल होंगे, यानी कि ये लॉकडाउन के बाद में, चाहे रमजान हो, दिवाली हो, या किसी का बर्थडे भी हो, तो लाइक लोग अपने है ना वेल विशर्स जो होंगे वो मास्क, लो कॉस्ट के जो सैनिटाइजर है, यानी कि एक स्पेशल फॉर्म पे लोग देंगे. क्योंकि अब जो भी चीज़ें अगर हम खाने की चीज़ें दें तो लाइक लोग थोड़ा सा डाउट करेंगे कि अरे यार इन्फेक्शन ना हो जाए, बट यू आर गिविंग अ हेल्थी थिंग टू योर लाइक क्लोज वन. काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं आपके. रियली वेरी नाइस. मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम वेटिंग टू अप्रोच यू. एंड आई होप कि कॉर्पोरेट सेक्टर से अगर कोई आपके प्रोग्राम मतलब आपकी बातें सुन रहे हो तो डेफिनेटली दे विल अप्रोच यू. थैंक यू सो मच. इसके अलावा रियली नाइस. इसके अलावा और कुछ है क्या? आई थिंक अभी तो फिलहाल यही है, बिकॉज इसमें ये फिर हमारा पूरा साल निकल जाएगा. देन विल स्टार्ट वन बाय वन, बिकॉज द प्रोडक्शन आल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज. अभी प्रोक्यूरमेंट ऑफ थिंग्स एंड ऑल चीजें कब तक नॉर्मल होगी, एंड आल्सो समटाइम्स इट्स अर्ली टू से दैट कि इसको कैसे पूरा करना है. सो अभी सो फार वी हैव दीस थिंग्स एट आवर प्लेट टू वर्क ऑन. Great, Anohita. My all wishes with you. Best wishes for you. लोक स्वास्थ्य मंडली से भी मैं जानना चाहूंगी कि पोस्ट लॉकडाउन के बाद में उनकी क्या स्ट्रेटेजी है. हाँ जी रजिया जी. हाँ जी. वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी दवाई की दुकान तो अभी चल रही है, पर पोस्ट लॉकडाउन के बाद भी उसमें इफेक्ट तो होगी ही, क्योंकि अभी जितना लोगों के पास इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ रही है के ऊपर इफेक्ट हुआ है, तो उसमें भी इतना टर्नओवर तो नहीं होगा. तो बेसिकली हम अभी डिजिटली ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं. तो अभी हमने जो 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी प्रोडक्ट रखी है, उसके अलावा हम और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक्री करना चाहते हैं. तो एक हमारा प्लानिंग है कि और हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर जाए. उसके साथ में हम ये सोच रहे हैं कि हम हेल्थ अवेयरनेस का काम भी करते हैं. तो हमारे पास वैसे अनुभव नहीं है, पर हम टेलीमेडिसिन को किस तरह से एज अ बिजनेस एक्सप्लोर कर सकें. तो अगर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी हमें कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं या उनके सुझाव दे सकते हैं. तीसरा हम ये सोच रहे हैं कि कोविड रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर हम उसको हम आगे मतलब डेवलप करें उस तरह की प्रोडक्ट को. और अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई सुझाव है तो वो भी हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं देने के लिए कि हम उसमें आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं. तो अभी हमने ये 3 चीजें सोची हुई है कि हम इसके ऊपर आगे काम करें. सही कहा आपने इला बहन. जिस हिसाब से अभी हम वर्तमान दौर देख रहे हैं
कि कोरोना की इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में आने में अभी वक्त लग सकता है। हम बोल नहीं सकते कि ये दवाइयाँ कब तक हमारे पहुँच में आएंगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि हेल्दी खाना जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट कर सकता है। तो हेल्दी प्रोडक्ट्स और भी हैं, तो ये प्रोडक्ट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सही होंगे, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स की आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ सकती है। तो इस तरीके के नए इम्यून बूस्टर जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोग बनाने की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए आप सजेशंस भी इनवाइट कर रहे हैं। रियली अ ग्रेट कॉल टू ऑल द व्यूवर्स। जो व्यूवर्स है अगर वो सुन रहे हैं, so I would request to all of them that please, if you have any suggestions to make some kind of immune booster products, please support the organization. Thank you so much, Ila Ben. Yeah, साथ ही हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन है अभी या फिर जिन लोगों ने रिकवर किया है, तो वो है उनका जो इम्यून सिस्टम है उसी की वजह से, यानी कि हेल्दी खाएं और हेल्दी रहें, स्वस्थ खाओ स्वस्थ रहो। साथ ही ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे किसानों के पास से भी आता है, तो हम कर्णभूमि से भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या है पोस्ट लॉकडाउन के बाद की स्ट्रेटेजीज। तो बेसिकली अभी इस लॉकडाउन के बाद की हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि हम अपनी जो किसान बहनें हैं उनको जितना हो सके गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स चल रही हैं एग्रीकल्चर में, उसके साथ हम उन्हें लिंक कर सकें, ताकि हमारी बहनों ने जो अभी तक लॉस झेला है लॉकडाउन में, तो वो थोड़ा बहुत वो रिकवर कर सकें। और सब्सिडी पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी पे खाद बीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उस स्कीम से उनको जोड़ के हम उनको सब्सिडी पे खाद बीज दवाइयाँ प्रोवाइड करा सकें, ताकि इस एग्रीकल्चर सीजन में उनकी कम से कम लागत में अच्छा प्रोडक्शन हो और वो रिकवर कर सके। और तीसरी स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि हम लोग का प्लान है कि इस बार हम लोग बहनों का जो भी खाद बीज का रिक्वायरमेंट है वो उनको हम लोग जो कर्णभूमि है वो अपना पिक करके और ये बहनों को उनके विलेज तक पहुंचाए, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्च बच जाए। और एक ही बार क्योंकि बल्क में जब प्रोडक्ट हम उठाएंगे तो प्रोडक्ट भी जो है वो थोड़ा हमें बहनों को सस्ता पड़ेगा, और वो जब बल्क में प्रोडक्ट उठ के उनकी बहनों के डोर तक जाएगा तो उनको ट्रांसपोर्टेशन पे भी काफ़ी सेविंग्स होगी। तो एक ये प्लानिंग अभी है हमारी आगे की। हाँ बोलिए कर दीजिए, और ऐड कर दीजिए। हम लोग का जो है हम लोग आगे प्लानिंग है कि आगे विलेज को बढ़ाएंगे और वहां जाकर के हम लोग सॉइल टेस्टिंग का भी क्या कहता है कैंप लगा करके, मतलब कुछ उसका फी रखेंगे जो कि हमारी कंपनी को भी बेनिफिट हो और वाहन का भी सॉइल टेस्ट हो। तो इस तरह का हम लोग प्लान, आप लोगों के बहुत अच्छे प्लान्स हैं। हाँ जी पूनम बहन। हाँ, और वही बोले कि हाँ आगे हम लोग विलेज बढ़ाएंगे और वहां जाके हम लोग सॉइल टेस्टिंग भी करेंगे, क्योंकि हम लोग को मट्टी जांच करने के बाद ये पता चलता है कि किस बहन के खेत में कितना खाद चाहिए। मतलब जैसे क्या एक इंसान का इलाज होता है उसी तरह हम लोग को खेत का भी करना है। तो हम लोग जब विलेज बढ़ाएंगे तो एक कैंप लगा करके हम लोग सॉइल टेस्टिंग करेंगे, तो उसमें कुछ हम लोग चार्ज रखेंगे जो कि बहन को भी नहीं अखरे और हम लोग का अपना कंपनी को भी फायदा हो। इस तरह से हम लोग प्लानिंग किए हैं। काफी अच्छा। यानी कि आज भी अगर हम देखें तो ग्रास रूट लेवल पे हमारे किसानों को मतलब ये ज्ञान है कि मिट्टी की जांच होनी जरूरी है। हाँ। किसी भी फसल को लेने से पहले अगर हमें ये पहले से मालूम हो जाए कि हमारी मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा फसल दे सकती है, तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद की बात होगी। तो ये कैंप लगा करके भी हम लोग इसको करेंगे। काफी अच्छा सुझाव था।
रियली ग्रेट, काफी अच्छा सुझाव दिया है आपने। तो ये रहा हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे हमारी तरफ से। अब हम हमारे व्यूअर्स की तरफ से सवाल लेना चाहेंगे। तो हमारी जो तीनों संस्थाएं हैं इन्होंने अपने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया, सुझावों के बारे में बताया। तो अब हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमें भारत ही नहीं भारत से बाहर भी हम लोगों को सुन रहे हैं, हमारे चीज़ों को जान रहे हैं, तो उनके भी कुछ सवाल है। तो इन्हीं में से हमारे पास में टाटा मोटर्स से प्रीति जी हैं, जो अनोहिता जी से ये जानना चाहती हैं कि क्योंकि हमारे जो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें जहां हमारे खुद के लोगों को मोटिवेट करना होता है, साथ ही हमें मार्केट में भी हमारे कस्टमर को भी मोटिवेट करना पड़ता है। तो आपकी ऐसी कौन सी वो प्रैक्टिसेस है जो लोगों को मोटिवेट करे, बनाने के लिए भी और बेचने के लिए और खरीदने के लिए भी? में सिंस इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस और सभी को एक दूसरे की साथ की जरूरत है, कोई भी अकेला खड़ा नहीं हो सकता। तो मेन पॉइंट जो मैं शुरू करूंगी, सिंस इट्स ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम सेबा, और सेबा की एक हमारी स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, तो आई थिंक मेरा जो फर्स्ट मोटिवेटिंग फैक्टर हमारी बहनों के लिए होता है एक कमिंग टुगेदर। सो इट्स क्राइसिस में भी उनको एक एहसास देना कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। तो एक अपनापन का फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सो अभी जो ये मार है सीधे उनके लाइवलीहुड पे आया है, उनको 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से अरेंज हो पा रही है। तो सेकेंड हमारी कोशिश होती है कि उनकी हम एसेंशियल सर्विसेज कैसे कोशिश करें कि पूरी हो जाए, या तो खुद हम अपनी संस्था की तरफ से कराएं, नहीं तो सरकार की तरफ से कराएं, जैसे भी एक लिंकेजेस करा के उनकी एसेंशियल नीड्स वो पूरी हो जाए। थर्ड उनके रोजगार पे आता है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अभी मार्केट की डिमांड है उसमें कैसे हम पिच इन करें, अपनी बहनों को रीस्केल करें, मोटिवेट करें, उनको काम दिलाएं। सो अगर ये 3 आपके पास है, आपके पास किसी का साथ है, आपके लिए 2 वक्त का खाना है और आपके पास रोजगार है, इससे ज्यादा मोटिवेटिंग अभी हमारी बहनों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक यही 3 मंत्र है जो लेके हम चल रहे हैं अभी इस क्राइसिस टाइम में हमारी बहनों के लिए। बहुत अच्छा मंत्र है कि आप अकेले नहीं हैं आपके सफर में, हम भी आपके साथ हैं। बहुत एंड रजिया जी एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। एक अभी हमारे ये एक नोशन है एंड गवर्नमेंट का भी है, मेड इन इंडिया चीजों को। सो इस क्राइसिस के बाद आई थिंक मैं अपने सभी हमारे जो यहाँ पे बहनें हैं, ऑडियंसेस हैं, रिक्वेस्ट है कि हमें मेड इन इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली मेड बाय द वुमेन एंटरप्राइजेस थोड़ा प्रमोट करें। बिकॉज हर एंटरप्राइजेस अभी यहाँ पे 3 तरह के एंटरप्राइजेस है जो अलग अलग तरह की सेक्टर्स में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और हम भी एसेंशियल चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम एक अपना मंत्र अपना लें कि मेड इन इंडिया प्लस मेड बाय द सोशल एंटरप्राइजेस, तो अपने आप हमारी बहनों की बहुत सारी सेल हो जाएगी और उनका लाइवलीहुड बहुत आगे चला जाएगा। सो आई थिंक एक ये प्लस मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। या एब्सोल्युटली ट्रू अनोहिता की हम जो यहाँ पर अपनी अपनी आइडियोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बिफोर दैट आई थिंक वी वुड लाइक टू थैंक मेक इन इंडिया टीम who are supporting idea came from there. Yes, sir, absolutely true, and this is like a special thanks for all behalf of us. So काफी अच्छा रहा है कि ये तो चलो जो हमारे साथ महिलाएं या फिर हमारी जो बहनें काम कर रही हैं ये उनके लिए है कि हम आपके साथ हैं। साथ ही हम कस्टमर्स जो हैं उन्हें भी अवेयर करना बहुत जरूरी है। कस्टमर यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे हम मास्क बना रहे हैं, लो कॉस्ट सैनिटाइजर बना रहे हैं, सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं उनकी क्वालिटी को लेके। तो हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई योर कस्टमर? So रजिया, आई वुड लाइक टू ऐड वन। जब मास्क की बात आती है तो ऑफ कोर्स हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना इज वन ऑफ आवर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो गवर्नमेंट जब हम मास्क बनाते हैं तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो अप द गवर्नमेंट मेजर्स, हाँ, जो भी मास्क है, बिकॉज देयर इज अ गवर्नमेंट एडवाइजरी कि मास्क के साइज क्या होने चाहिए। इट्स 3 प्लेट्स, 2 प्लेट्स, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, फिल्टर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिजाइंस आल्सो इन द मार्केट, हाँ, बट एक स्टैंडर्ड एडवाइजरी एंड नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट से रिलीज हुआ है। सो वी ट्राई टू स्टिक टू दैट, जिससे कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो एंड फर्दर कोई क्वेश्चंस भी नहीं हो, बिकॉज वी आर फॉलोइंग गवर्नमेंट मेजर्स, हाँ, सो विच इज अ मोर फेथफुल। सो एक वो चीज होता है जो हम उनकी सेफ्टी इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं।
रियली अ ग्रेट आइडिया आपका। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं या फिर है ना जो नोटिफिकेशन है या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके वो पहले अगर जान लें और उसके बाद हम काम शुरू करें तो इट्स अ रियली ग्रेट कि हम सक्सेस कर सकते हैं। रियली नाइस। हमारा जो अगला सवाल है ईला बहन से है जो लोक स्वास्थ्य मंडली से हैं। आपसे गीतांजलि जी हैं जो आइडिया फाउंडेशन से हैं, वो जानना चाहती हैं कि छोटे स्तर के जो बिजनेस को चलाने के लिए लॉकडाउन के बाद में किन किन चीजों की ज्यादा जरूरत हो सकती है? ईला बहन। मुझे सबसे पहले मुझे लग रहा है कि सैनिटाइजर, मास्क ये सब अब एसेंशियल हो गया है और मुझे लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा मार्केट भी है जिसकी बिक्री के साथ हमारी बहनें जुड़ सकती है। तो वो खुद भी जब हेल्थ एजुकेशन का काम करने के लिए जाती है तो वो ये कर सकती है। उसके अलावा उनके आसपास में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारी लोग होंगे तो उनको भी वो हमारी प्रोडक्ट देके उनकी बिक्री के साथ वो जुड़ सकती है। तो इस तरह से वो अपना काम बढ़ा सकती है। उसके अलावा वो टेक्नोलॉजी का यूज भी हम उनको सिखा सकते हैं। वो व्हाट्सएप के द्वारा भी वो अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। और हमारी बहनें गांव में ही रहती है या शहर में आसपास में जहाँ पे भी वो जा सकती है वहाँ मूव होके वो फिर अपना मतलब ये एसेंशियल जो भी चीजें हैं वो लोगों तक पहुँचा सकती है। उसके द्वारा वो आमदनी बढ़ा सकती है। Yeah, great. Great suggestion, great answer from you. प्रेक्षा जी दासंती बहन से जानना चाहती हैं। दासंती बहन, आपके लिए प्रेक्षा जी एक सवाल आपसे करना चाह रही हैं। दासंती बहन, हेलो जी। दासंती बहन, आज मार्केट में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने पांव जमाए हुए हैं, तो जो छोटे स्तर पे जो बिजनेस चला रहे हैं तो इनके लिए उनके सामने या फिर अब मार्केट में जो अपने बिजनेस को बढ़ाना हो तो वो क्या करे, किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाए, कैसे लोगों तक पहुंचे? जो बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि अभी हमारी जो फार्मर्स हैं पहले तो अकेले अकेले काम करती थी तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती थी किसी से। पर अब कर्णभूमि के थ्रू अब हमारे जो फार्मर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अप्रोच कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को ये पिक करने के लिए। लाइक बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश, ऐसी कंपनीज को भी हमारी जो कर्णभूमि की बहनें हैं उनका ये अभी कहना है कि हम लोग इनको अप्रोच करें ताकि वो भी हमारा जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का वो उसे पिक करके और उसे सेल आउट कर सकें। वाह, यानी कि आप अभी बड़ी कंपनी को भी अप्रोच कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। हाँ बिल्कुल, पहले ये होता था कि हमारी बहनें अकेले अकेले अपना सेलिंग करती थी तो ये होता है कि सिंगल सेलिंग में तो वो कुछ कर नहीं पाती थी। बट अभी वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सब बहनें जब मिलके एक साथ जब अपना प्रोडक्ट जो एक जगह इकट्ठा करती हैं तो उनके साथ ये प्लस पॉइंट होता है कि वो सब एक साथ होती हैं तो वो मार्केट डोमिनेट कर पाती हैं, खुद अपना भाव तोड़ पाती हैं बाजार में कि नहीं हम इसी भाव देंगे, हम इस भाव में नहीं देंगे, तो उनको लॉस नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसीलिए वो उनका ये अभी प्लान हो रहा है बहनों का कि हम लोग बड़ी कंपनी को अप्रोच करें ताकि वो भी हमारा प्रोडक्ट उठा सके। ओके, नाइस, वेरी ग्रेट। लोक स्वास्थ्य मंडली के लिए एक सवाल है हमारे ही व्यूवर से कि अभी जिस हिसाब से क्राइसिस है सबसे बड़ा जो है वो कैश फ्लो का है। लोक स्वास्थ्य मंडली, चाहे लोक स्वास्थ्य मंडली की बात करें, रुआब की बात करें, सारे के सारे अभी जो है वो कैश क्राइसिस है उससे गुजर रहे हैं और इसी क्राइसिस से बाहर आने का जो अभी है वो है डिजिटल कैश फ्लो। तो क्या हमारी बहनें क्या डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से यूज टू हैं? नहीं, अभी इतनी यूज टू नहीं है। अभी हमें उस पर थोड़ा और देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा
और बेसिकली मैं कैश फ्लो की बात करूँ तो लोक स्वास्थ्य मंडली के लिए भी एक समस्या होगी कि आगे हम किस तरह से अपनी कैश को मैनेज कर पाए। ये 1 महीना तो ठीक है अब चला है, पर आगे के दौर में हमें वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारा बिजनेस होना चाहिए उस तरह से अभी हो नहीं रहा है। बट ऑब्वियसली हमें इन सब चीज़ों की जरूरत भी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि हमारे लिए एक चैलेंज ये भी था कि एक तो जो भी हमारे जिनसे हम परचेज करते हैं वो एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, और साथ में ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर की भी फैसिलिटीज होनी हमारे लिए जरूरी हो गई है अब। तो अब हमें उसके ऊपर थोड़ा मूव करना ही पड़ेगा। ट्रू, क्योंकि आज के दौर में हर कोई पहले, क्योंकि सबके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो एडवांस में ही लेना चाहते हैं, और इधर देने वाला भी लाइक ही इज आल्सो इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो चारों तरफ पैसे की काफी शॉर्टेज है। तो हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। इसमें एक और हमारा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड हो चुका है, तो मेरा जो सवाल है हमारे ही एक व्यूअर्स की तरफ से है, वो इला बहन और अनयोता जी से है कि टेक्नोलॉजी कितना अपना रोल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्ले कर रहा है, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इला बहन, आप शुरू करना चाहते हो? हाँ आराधना, हाँ बेसिकली मुझे लग रहा है कि बहुत अभी ये जो 2 महीने हमारे गुजरे हैं, तो हमें डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी का। हमारे बिजनेस को अब आगे हमें बढ़ाना है, तो क्योंकि काफी लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन का यूज करना सीख भी गए हैं। तो अभी हमारे जैसी कोऑपरेटिव के लिए स्कोप है कि हम अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन के थ्रू बढ़ाए, और हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या अपना खुद का एप्लीकेशन बना के अपने लोगों तक ये अपनी चीजें और अपनी बात है वो पहुंचाए। और ज्यादा से ज्यादा मास तक हमें पहुंचना है, तो हमें ये टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। अनोहिता जी आप। थैंक यू इला बहन। सो रजिया जी, बहुत ही अभी टाइम में इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सवाल, बिकॉज पूरी दुनिया ही डिजिटाइज हो गई है, लाइक ऑफिस से लेके बच्चों के स्कूल्स तक के एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन। तो हमारी बहनें भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो मैं दो फ्रंट में बात करूंगी, टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज एन अपॉर्चुनिटी प्लस चैलेंजेस ऑल्सो, बिकॉज जिन बहनों के साथ हम काम करते हैं उसमें चैलेंजेस पे काफी कुछ आती हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। रिसेंटली वी वर डीलिंग विद अ क्लाइंट हु इज इन बॉस्टन, एंड उनका बिहार में उनको मास्क के कुछ मैन्युफैक्चरिंग कराने थे, एंड देन सम पीपीई किट्स वर क्वाइट डिफरेंट डिजाइंस। सिंस हमारी बहनों ने किया नहीं था तो दे नीडेड अ ट्रेनिंग। सो हमने इंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हमने ऑनलाइन प्लान किया कि उनकी जो ट्रेनिंग होगी यूएस से सीधे बॉस्टन जो ट्रेनिंग होगी वो जूम के थ्रू होगी। एंड अभी भी सलमा बहन जो हमारी बोर्ड मेंबर हैं वो अभी जूम के थ्रू कनेक्ट हुई हैं, उनके लिए भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उनको हमने पहले भी कुछ किए। तो एक तो ये कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड ऑल भी ऑनलाइन पॉसिबल हो पा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, तो ये हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देख सकते हैं। सेकेंड आता है मार्केटिंग, जो कि अभी कोविड के एज में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होने वाली हैं, बिकॉज हमारा जो सेक्टर है और जिन हम बहनों के साथ काम करते हैं उनके प्रोडक्ट मेनली कहाँ पे बिकते हैं? एग्जीबिशंस में, इट्स B2C रिटेल मार्केट्स में, विच इज अभी नियर फ्यूचर में वी डोंट हैपनिंग। एग्जीबिशंस एंड लार्ज गैदरिंग्स तो नहीं हो सकते, तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होंगी। तो ऑनलाइन में जैसा इला बहन ने बोला कि वी कैन गेट प्लेटफॉर्म फॉर सम अदर ऑनलाइन पोर्टल्स। जिम में ऑलरेडी रुआब की प्रेजेंस है, जो जिम इज ऑल्सो ऑनलाइन पोर्टल। सो सेम कुछ ऐप डेवलप करके ऑनलाइन वेबसाइट्स बना के तो डेफिनेटली सेल को प्रमोट किया जा सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस, एवरीथिंग अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू हैव एक्सेस टू अ एंड्रॉइड फोन विद इंटरनेट, राइट? सो ये चीज अभी भी हम जिन बहनों के साथ काम करते हैं, एक काफी प्रतिशत बहनें ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है। तो अगर हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना भी चाहेंगे तो देन वी विल लैग बिहाइंड हियर।
कि उनके पास फोन नहीं है, तो वो ट्रेनिंग एंड वो अपस्केलिंग जो है, तो नॉट हैविंग अ एंड्रॉइड फोन कैन बी अ बिग इशू इन दिस टेक्नोलॉजी थिंग्स, बट हाँ देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी कैन गो ऑनलाइन फॉर सेम ट्रेनिंग, हाँ मीटिंग्स वी डू, जिससे कि हमारा टाइम बचता है एंड ऑल एवरीथिंग। तो अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी है टेक्नोलॉजी को अपनाने में। या आपने सही कहा कि अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड, selling our products is digital, like it comes under digitalization, getting like connect with grassroots level or hierarchy level, everything is will be in a like digital way. बट कहीं ना कहीं तो फिर हम लोगों को इसमें एक और भी चीज़ हो जाती है कि जब हम ग्रासरूट लेवल पे उतरते हैं, जहाँ पे काम करना होता है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंस की भी बात होती है। तो इसमें हम लोगों को एक सवाल मिला है हमारे एक और व्यूअर से कि ये जो हम लोगों का सोशल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वुमेन के द्वारा जो चलाई जा रही बिजनेस में कितना इम्पैक्ट कर रहा है या फिर कितना ज़रूरी है? मैं जवाब दूं इसका। हाँ, सो सोशल डिस्टेंसिंग हम जो अभी बेसिकली रुआब जिन बहनों के साथ काम कर रहा है, इनफैक्ट मेरी सिस्टर एंटरप्राइज भी जो भी प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ अस वर्क विद द होम बेस्ड वर्कर्स। हाँ, एंड होम बेस्ड वर्कर का मतलब होता है कि उनका घर ही उनका वर्क प्लेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं रुआब की बात करूं, अभी जो मास्क बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं भी कोई गैदरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारे सेंटर्स हैं जो कि बंद पड़े हैं, सेंटर्स हम खोल भी नहीं रहे। सो रॉ मटेरियल हम बहनों के घर जाके डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। सो बहनों को एक जगह इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सोशल डिस्टेंसिंग। उनको उनके घर से ही काम करना होता है, उनको जबरदस्ती बाहर भी नहीं आना होता है। बस आप उनके रॉ मटेरियल घर पहुंचा दो, वो लेंगे, वो अपने घर पे आराम से काम करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये सारा एंटरप्राइज इट्स अ नेटवर्क ऑफ होम बेस्ड वर्कर, जो प्राइमरी उनका घर ही उनका वर्क प्लेस है। तो हमें उनको अननेसेसरी बाहर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेंटर में गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कम से कम जब तक ये कोविड है, कोविड के बाद तो ऑफकोर्स जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो वो सेंटर आएंगे, अपना काम करेंगे, बट वी कैन मैनेज दिस सिचुएशन प्रिवेल इन सोसाइटी। ये तो जो मास्क है उससे रहा, लेकिन कर्णभूमि से जैसे कि हम अगर पूनम बहन से जानना चाहें कि सोशल डिस्टेंस यानी कि एक दूसरे से जो हम लोग दूरियां बना के रख रहे हैं ताकि इन्फेक्शन दूसरे को ना हो, लेकिन क्या जब हम खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो क्या ये सोशल डिस्टेंस वहाँ पे संभव हो पाता है? पूनम बहन आप बताएं। जब ये मतलब क्या कहता है विलेज जाएंगे तो हम खुद मास्क लगा के जाएंगे, ग्लव्स लगा के, पर्स में सैनिटाइजर लेके जाएंगे और बहन को जागरूक करेंगे कि बहन आप भी इस तरह से यूज कीजिए, और बहन को और बहन मीटिंग जब हम लोग करेंगे, बैठेंगे, उसमें सारा चीज बताएंगे मीटिंग के माध्यम में कि कितनी दूरी में बैठना है, क्या क्या प्रयोग करना है। सही, बहुत अच्छा सजेशन। हमारे किसान बहनों और भाई खेतों में उतरे तो अपने साथ सैनिटाइजर लेकर जाएं, मास्क लेकर जाएं और अपना एक खुद का हाथ का बना हुआ एक पीपीटी किट, यानी कि किस तरीके से आप अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं, आप खुद भी पालन करें और लोगों को भी इसको पालन करने के लिए मोटिवेट करें। बहुत अच्छा बताया आपने पूनम बहन, रियली ग्रेट। साथ ही मैं लोक स्वास्थ्य मंडली से भी जानना चाहूंगी कि देखिए दवाइयाँ बन रही हैं, दवाइयाँ बिक भी रही हैं, कच्चे माल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या है सोशल डिस्टेंस को लेके नजरिया? जो पूनम बहन ने बताया वो सही है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ जब प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे भी हम कम बहनें ही हमारे यहाँ आती है और हमने पूरे जो भी प्रिकॉशन लेने हैं वो लेते हैं हम लोग कि सैनिटाइजर तो हम खुद ही बनाते हैं, तो वहाँ पे अवेलेबल होता है। जब वो बहनें एंटर करती है तो सबसे पहले सैनिटाइजर का यूज करके फिर ही हमारे यूनिट में एंटर होती है। मास्क ऊपर मतलब कैप और सब पहन के ही वो प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व होती है। और जो भी बहनें प्रोडक्शन में होती है वो काफी डिस्टेंस में बैठ के काम करती है। तो और दवाई की दुकान में भी जो बहनें काम कर रही है। हाँ बोलिए, कंटिन्यू। और
दवाई की दुकान में भी जो बहनें हमारी काम कर रही है, तो वहाँ पे भी हम सब प्रिकॉशन लेते हैं। बहनों को हाथ में ग्लोव्स और मास्क, सैनिटाइजर, वो सब भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। और वहाँ पे हम लोगों ने मतलब हर जगह पे भीड़ इकट्ठी ना हो दवाई की दुकान में, उस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। और एक 1 by 1 लोगों को बुला के हम दवाई देते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करने की करते हैं। इला बहन, आप ही से एक और सवाल है। आपके हमारी एक व्यूअर है ज्योति जी। ज्योति जी ये जानना चाहती हैं, जिस तरह से आप लो कॉस्ट सैनिटाइजर बना रहे हैं, लो कॉस्ट फेस मास्क बना रहे हैं, तो भविष्य में क्या आप लोग लो कॉस्ट सैनिटरी पैड के ऊपर में भी कुछ प्लान अप कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं की भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। अभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं है। मतलब आगे जाके प्लान कर सकते हैं, पर उसमें एक ये भी है कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन की टेक्निकलिटी भी होनी चाहिए, उसके अलावा हमारे मार्केटिंग की भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि अभी हम एग्जिस्टिंग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम मार्केटिंग में स्ट्रेंथ बढ़ाए, फिर बाद में हम दूसरे और प्रोडक्ट के ऊपर आगे अपना काम करें। रियली ग्रेट का फ्यूचर प्लानिंग के साथ हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमारा एक सवाल है। ये हमारे जो व्यूअर हैं मृदुल्या जी हैं। तो मृदुल्या जी का ये सवाल है कि अभी जिस हिसाब से हमारे पास अचानक से ये कोरोना सामने आया, लॉकडाउन हुआ, तो एक हम लोगों की जो प्री प्लानिंग होती है कि प्रोक्योरमेंट यानी कि कच्चे माल का जमा करना, देन आने वाले वक्त में कब किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए तो किन किन चीज़ों की जो हमें प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, या लाइक आने वाले भविष्य के लिए फिर से प्लान करने होंगे। प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें, कच्चे माल का प्रोक्योरमेंट हो, चाहे पैसों के बारे में हो, तो इसको लेके आप लोगों की कोई प्लानिंग हो रही है? क्योंकि अब तो हम लोग एक तरीके का एक एक्सपीरियंस भी आ गया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम नहीं बोल सकते। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ हमारे पैनलिस्ट से एक करके कि आप लोगों का प्रोक्योरमेंट को लेकर क्या प्लान है? क्या गवर्नमेंट के जो ई पोर्टल्स है जहाँ पे, हाँ, क्योंकि अभी तो मार्केटिंग चेन्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, तो गवर्नमेंट ने हमारे सहूलत के लिए ई पोर्टल बनाया है, तो ये हमारे लिए कितना मददगार होगा? अनोहिता जी आप बताएं। थैंक यू रंजना जी। सो गवर्नमेंट ई पोर्टल की बात करें तो हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी है जिम पे अभी। इनफैक्ट कि पहला जो हमारा मास्क का ऑर्डर था वो जिम के थ्रू ही आया था। और गवर्नमेंट के पोर्टल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है, देयर इज अदर प्राइवेट पोर्टल्स आल्सो लाइक अमेजोन, मिंत्रा भी है, बट उनमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उनके अपने खुद के कट बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे जैसे स्मॉल सोशल एंटरप्राइजेस को वहां पे सस्टेन करने में थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर जेम की बात करें तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने वहां पे रजिस्ट्रेशन में कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं दिए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज क्वाइट इजी। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं छोटे से एंटरप्राइजेस के लिए। अगर आप प्राइवेट वेब पोर्टल को देखो तो उनके हर ऑर्डर पे उनका अपना एक कट होता है। सो दोज मार्जिन्स ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के प्राइस को काफी हाई कर देते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट की फिर मार्केटिंग नहीं हो पाती है, बिकॉज एक वो बहुत ही अलग कॉस्ट लेवल पे वो पहुंच जाता है। एंड अदर हैंड गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे ये सारे सब्सिडीज होते हैं वहां पे, जो कि बहुत हेल्प करता है किसी भी एक एंटरप्राइज को अपने आप को वहां पे प्रेजेंस को रजिस्टर कराने में। आपने सही कहा कि जैसे बड़ी कंपनीज हैं उनके बहुत कट ऑफ होते हैं। ये काफ़ी आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो प्राइवेट कंपनीज के पोर्टल होते हैं उनके कट ऑफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारा सबसे बड़ा जो दोस्त होता है वो हमारा गवर्नमेंट का ई पोर्टल होता है, जहाँ पे हम कम दरों पे, क्योंकि आज भी हमारे ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो कि कम दरों पे चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बनाने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए, साथ ही खरीदने वालों के लिए भी। कर्णभूमि, अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि आप कृषक संघ से हैं, तो ई गवर्नमेंट जो पोर्टल है जहाँ पे आप चीज़ें बेचती हैं, वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ही छोटी होती है, एक एरिया से दूसरे एरिया जाने में ही ये खराब हो सकते हैं, तो ई गवर्नमेंट पोर्टल पे कृषक संघ किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं? ई गवर्नमेंट
गवर्नमेंट पोर्टल हमें इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि गवर्नमेंट में बहुत ऐसा होता है कि वो जो हमारी बहनों का प्रोडक्ट है वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस होता है वो बहुत ईजियर होता है कंपेरेटिवली प्राइवेट का जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस होता है। तो हमारे लिए ई गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करने पे ये सबसे बड़ा फायदा है कि वो अगर हमारा प्रोडक्ट उठाते हैं तो बहुत इजीली एक स्टेट टू वन स्टेट टू अदर स्टेट वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो उसमें हमारी बहनों का प्रोडक्ट जो है वो डैमेज कम होगा और वो जल्दी पहुंच भी जाएगा, और इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो हमारी बहनों को कॉस्टिंग भी कम आएगी। ओके, ग्रेट। तो किसान भी अपना मतलब जो सब्जियां बेचना चाहते हैं या खाद लेना चाहते हैं वो ई पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो ई पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। साथ ही में लोक स्वास्थ्य मंडली, अगर जैसे कि आपने टेलीमेडिसिन की भी बात की है, तो आप लोगों को ई जो गवर्नमेंट का जो ई पोर्टल है वो कितना हेल्प कर सकता है? वो भी काफ़ी हमारे लिए बिजनेस स्कोप बढ़ा सकता है, क्योंकि हमारी जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट है उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी है जो गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करता है, और हमारा भी जेम के ऊपर रजिस्ट्रेशन है। तो हमें स्कोप है कि मतलब हमें आशा है कि ये पोर्टल हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स हमारे बहुत सारी महिलाओं को मदद दे सकता है। आने वाले वक्त पे हम जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी ऐसे पोर्टल से जुड़े तो उनके बिजनेस के लिए आगे जाके बहुत फायदा होगा, राइट? हमारा एक धनगौरी बहन से सवाल है कि इन मुश्किल दौर में भी हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि समस्याएं आती हैं, कई बार हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। कभी हम अपनी परेशानियों से, कभी संस्था की अन्य महिलाओं की परेशानियों से हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है। तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, चाहे बात करें हम आपकी या फिर कर्णभूमि की या फिर रुआब की, हर एक के ऊपर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कांधों पर उठाई हुई है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौर में हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि कभी भी अगर डिप्रेशन होता है तो यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। तो धनगौरी बहन आप बता सकते हैं? हेलो, शायद हमारा लाइन उनसे कट हो गया है। अनोहिता जी, आप हमें बता दें कि हम खुद को कैसे मोटिवेट करें। आप बहुत मोटिवेशनल हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। मे बी आई थिंक दैट फॉर्मूला कैन ऑल्सो वर्क फॉर अस। थैंक यू रजिया जी। बट मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जो हमारी सलमा बहन है, अगर वो इस सवाल का जवाब दें तो सच में बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगी, क्योंकि वो जितनी अच्छे से वो समझती हैं सेवा को, उनका काफी लंबा जुड़ाव रहा है। सलमा बहन आप हैं क्या कॉल पे? सलमा बहन? हाँ जी। सलमा बहन आप हैं? हाँ, हाँ सलमा बहन, एक सवाल है, एक अगर आप करो कि अभी इस टाइम में है ना, रजिया जी ने पूछा है कि कैसे मोटिवेटेड है हम लोग, हाँ इतने खुशी खुशी कैसे हम बहनों के लिए काम कर पा रहे हैं, एनर्जी कहाँ से आती है? अगर आप इस सवाल का जवाब दो तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी जी जी। एनर्जी भी तो ऐसा है, एनर्जी तो खुद भी खुद आती है सोचने। जब ये सोचता है ना इंसान कि कितनी बहनें परेशान है, अगर उनके बारे में सोचता है, अगर कितनी बहनें परेशान है, उनको काम की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, तो अब ये आपको तो इतना सोचना पड़ेगा, खुद भी खुद एनर्जी लानी पड़ेगी इस चीज के लिए कि हमें बहनों को काम देना, उनकी हिम्मत बनना है। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही।
आप समराइज करें अनुहिता जी। हाँ, सो रजिया जी, आपने सुना सलमा बहन को, जो हमारा मोटिवेशन है, हमारी जो हिम्मत है, वो आती है हमारा जो इथॉस है सेवा का। बिकॉज हम सबको पता है, अभी तो हम 2-3 सेक्टर के लोग बैठे हैं, ये कोविड का जो इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट जो हमारे हैं इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं। और हम इनफॉर्मल सेक्टर में स्पेशली महिलाओं के साथ काम करते हैं, तो एक जो फीलिंग होती है कि इस काम से इतनी महिलाओं को हेल्प मिल जाएगी, उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, तो आई थिंक वही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। वो जो एक हैप्पीनेस होती है, जो सेवा फैमिली से जुड़ के आई है, सेवा के इथोस को समझने के बाद आई है, तो आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर वही है हम सबके लिए। यानी कि अगर किसी की समस्या है और उस समस्या का समाधान अगर हमारे काम से हो सकता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। और अगर खुशी मिलती है तो ऑटोमेटिकली लोग जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं अपने काम को लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको सही कहा आपने। हाँ, बिकॉज हमें पता है कि हमारे एक काम से इतनी महिलाओं को फायदा हो सकता है, उनकी जिंदगी सुधर सकती है, तो फिर क्यों नहीं। या श्योर श्योर। पूनम बहन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कौन सी चीजें मोटिवेट करती हैं? इस कोविड के दौर में आप कैसे मोटिवेट करेंगी अपने को बांध के रखने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हमको किस तरह से कार्य करना चाहिए। जब हम अपने आप पर विश्वास है कि हम ये कार्य कर लेंगे, तो हमारा जो मतलब पीछे जो विलेज में बहन है, एक एकता है, उसमें एक संगठन है। और जब हम कोई चीज का लक्ष्य लेते हैं कि ये लक्ष्य है मेरा, ये चीज करने, जैसे अभी मास्क बनाने का हम लोग का लक्ष्य है कि आगे हम इसको इस कोरोना से परहेज होने के लिए हमको बनाना है, मास्क बनाना है, खुद अपने भी प्रयोग करना है, घर में भी करना है, और आगे हम लोग अपना मार्केट भी करेंगे। तो ये पहले हमने निर्णय लिया है, क्योंकि हमको अपने आप विश्वास है कि हम इस निर्णय को अपना लक्ष्य बना के चले हैं तो आगे बढ़ेंगे। और हम जब विलेज में इसको रखेंगे तो बहन भी इसको लेकर चलेंगे, तो हमको पूर्ण विश्वास है, इसलिए हमको खुशी होती है, अपने आप पर मोटिवेट है। सही कहा आपने। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसी पे एक चीज है कि किसने कहा कि भारत की नारी कमजोर है। अगर हिम्मत देखनी है तो इन औरतों से आके बात करो। हिम्मत का ये तो बहुत बड़ा खजाना है। गांव में भी हमारी जो महिलाएं आत्म दृढ़ता पूर्वक जो काम कर रही है आत्मसम्मान के साथ में, रियली इट्स अ ग्रेट थिंग। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। साथ ही हमने यहाँ पे देखा कि सेवा भारत जो हम सारे लोगों को यहाँ पे बांध के रखा, हमारे विचारों के बारे में, हमारी जो जर्नी रही है उसको लोगों के सामने लाने में हमें बहुत मदद किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से और भी लोग सेवा से जुड़ सकते हैं, कैसे वो सेवा से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम तो सेवा से जुड़ चुके हैं, लेकिन और भी महिलाएं जो हैं, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे क्षेत्र है, बहुत सारे राज्य है जहाँ पर महिलाएं संघ बना के, समिति बना के कार्य कर रहे हैं, वो कैसे सेवा से जुड़ सकती हैं? और इस लॉकडाउन में भी जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? सेवा से जुड़ना है, सेवा जैसी संस्थाएं जो हमें मदद कर रही हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग कैसे आप इस पे बताएं। पूनम जी। हम सेवा में कैसे लोगों को जोड़ेंगे, तो इसमें हम मेंबरशिप से उन लोग को बहनों को जोड़ेंगे सेवा में। मेंबरशिप से हम लोग बहनों को जोड़ेंगे सेवा में। ग्रेट। तो ये मेंबरशिप, यानी कि जब आप अपनी मेंबरशिप देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी महिलाएं आपसे अगर जुड़ रही हैं तो वो सेवा से भी जुड़ रही हैं। राइट। ये सही कहा कि अगर हम सेवा से जुड़ गए और हम अगर और भी महिलाओं को अपनी ओर जोड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो खुद ब खुद सेवा से जुड़ते जा रही हैं। अनुहिता जी, आप। जैसा पूनम बहन ने बोला, हमारी सेवा जो है एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो हमारे ऑडियंस से अगर ये सवाल आ रहा है तो ऑफकोर्स वो 2 तरीके से जुड़ सकते हैं, 2 तरह के ऑडियंस भी होंगे। जो हमारी बहनें हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, सेवा उन्हीं का है।
एज ए मेंबर जुड़ सकते हैं। वो हमारा बस एक वार्षिक फी होता है 10 रुपए का, जो देने के बाद बहनें सेवा से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। वो एनुअल रिन्यूअल होता है, फिर वो संस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएंगी, जो कि कभी हटाया नहीं जा सकता। सेकेंड है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी सेवा से जुड़ सकते हैं। वैकेंसीज आती रहती हैं, वो वॉलंटियर भी कर सकते हैं दूसरे लेवल पे, इंटर्नशिप भी चलती रहती है रोलिंग बेसिस पे सेवा में। तो ये 2 फ्रंट है जिससे कि हमारा जो सवाल जहां से आ रहे हैं वो दोनों 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर और भी महिलाएं या फिर लाइक यंगस्टर्स अगर जुड़ना चाहते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू या फिर अदर जो भी लाइक अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू सेवा से जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा सुझाव रहा। तो दोस्तों और भी अगर हमारे जो बहनें हैं वो कुछ अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सलमा बहन, अनोहिता बहन, धनगौरी बहन, इला बहन, दासंती बहन, पूनम बहन, क्योंकि अब हम लोग प्रोग्राम के एक अंतिम छोर की तरफ मूव कर रहे हैं, वक्त भी कम है, तो अगर कोई अपने कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। तो एक के बाद एक अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं जो अभी तक कवर नहीं किए और आप शेयर करना चाहते हैं। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। दसंती बोल रही हूँ। याद आती है, बोलिए। ओके, मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो है वो अपने आप को किसान बहन तो बोलती हैं, बट इस लॉकडाउन में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी वुमेन फार्मर या हम जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो ये फेस कर रही हैं कि बीइंग अ वुमेन हमें कर्फ्यू पासेस नहीं मिल रहे हैं। और उसके पीछे ये रीज़न है कि किसी भी बहन के पास अपना 2 व्हीलर नहीं है, तो कर्फ्यू पासेस भी सिर्फ उन्हीं को इशू किए जा रहे हैं जिनका अपना 2 व्हीलर है। और जो हमारी वुमेन्स फार्मर हैं उनके पास अपना 2 व्हीलर नहीं है, उनके हस्बैंड का है या उनके बेटे का है। तो ये एक हमारी किसान बहनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम महिला हैं तो हमें इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिल सकती है। ग्रेट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि आपने ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें फेस की हैं वही यहाँ पे शेयर किया। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम और भी लोगों को भी है। इसका जो सोल्यूशन निकलता है डेफिनेटली उसका हम बताएंगे ज़रूर, कोशिश करेंगे कि इसका सोल्यूशन निकल के आए। जी और भी कोई मैं जो अपने कोई पॉइंट्स देना चाहें या फिर रखना चाहें? या अनोहिता जी। आई थिंक बहन कुछ बोलना चाह रही थी, तो प्लीज आप। हाँ सलमा बहन बोलिए। हाँ सलमा बहन प्लीज बोलिए। हेलो, हाँ सलमा बहन प्लीज बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ यही है, बहनों के लिए, सब सारी बहनों के लिए काम आए। हेलो बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको सलमा बहन, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ और भी एक खोट है, जैसे खोटे से जैसे भी माल उठाया करता था रुआब, और भी एक खोट से जिस तरह माल बिल्कुल आना बंद हो गया और आने लगे, तो सारी बहनों को काम मिल सकता है। जैसा ऑनलाइन ही हम दिखाते हैं, सैंपल दिखा देते हैं, तो बहनें बना रही है घर बैठकर। अगर इसी तरह चले तो बहनों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी इसमें। रियली सो रजिया जी, सलमा बहन ने बहुत अच्छा पॉइंट किया। एक्चुअली मेरी भी वही रिक्वेस्ट थी अपने ऑडियंस से और हमारे सारे नेटवर्क से कि हमारा अभी जो मेन एक
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सोशल एंटरप्राइज को हम कैसे इस क्राइसिस से बाहर निकालें और उनके रोजगार को कैसे अच्छा करें। तो उसमें से अगर हमें कोई हेल्प मिल सकता है ऑडियंस से, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर ऑर्डर्स for anything, so we will be really grateful, and any time we can accept any kind of order we can seek in, of course, in our capacity only. So सलमा बहन ने यही बोला और मेरी भी यही रिक्वेस्ट होगी हमारे ऑडियंस से एक्चुअली। तो ये रहा हमारे साथ 3 संस्थाओं का उनका वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोविड-19 के दौर पे किस तरीके से वो चैलेंजेस फेस कर रही हैं, किस तरीके से उसका सोल्यूशन दे रही हैं और उसके बाद में इन हेल्प की उन्हें ज़रूरत है। अगर हम इसको एक समराइज करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तो काम वाकई में बहुत से लोगों के पास में नहीं है। कुछ लोगों के पास घर जैसी चीज़ें भी नहीं है, किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो लेबर जो है वो मूव आउट हो चुके हैं। तो ये बहुत सारी बेसिक समस्याएं हैं जो लोग जूझ रहे हैं, और हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपने अपने एरियाज में काम कर रहे हैं। तो ये अगर मेरी भी बात करें, हेलो 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 हाँ, तो अगर हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो हमारा एक उद्देश्य ये होता है कि हम जो सीखे हैं हमारे साथ अन्य लोगों को भी सिखाएं और उनको भी साथ लेकर चलें। अहमदाबाद से लोक स्वास्थ्य मंडली, बिहार से हमारी कर्णभूमि, दिल्ली से रुआब जैसी संस्थाओं के जैसे ही हम भी छत्तीसगढ़ में अपना एक फर्म रन कर रहे हैं जिसका मेन उद्देश्य जो है जंगलों से लाए जाने वाले जो वनोपज है उनसे जुड़े चीज़ों को बनाना और लोगों को प्रोवाइड करवाना, जिससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार मिल सके। हमारी जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिनके पास किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके पास में वो ज्ञान है जो कि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से मिला है। तो हम उनके ही इस ज्ञान को अपने जो टेक्निकल नॉलेज है उससे हम जोड़ते हैं और उन लोगों के लिए घर बैठे उन्हीं के गाँवों में रोजगार के अवसर दिलाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी समस्याएं भी वही हैं जो ये संस्थाएं झेल रही हैं। तो इनके जो सुझाव है वाकई में हम I think we've lost Razia. She might have lost connectivity. She's not on the call. So actually, before we head off this call, I want to hand it over to Saloni or Nirali from the team, who can maybe kind of give our concluding remarks to this. Because I don't think Razia, she's having some difficulty with it. Thank you संजना। आई थिंक रज़िया बहन की आवाज नहीं आ रही हम तक, तो हम ये पैनल इधर ही कंक्लूड करते हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूंगी कि मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सब पार्टिसिपेंट्स ने, रज़िया जी ने, संजना आपने इतना टाइम निकाला और हमें इतनी रिच इंफॉर्मेशन दी कि आप अपने अपने सेक्टर में क्या काम कर रहे हैं और कोविड के दौरान आपको क्या दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों का आप हल कैसे निकाल रहे हैं। तो इसी के साथ WEP नीति आयोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रज़िया जी का शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह से ये पैनल हमारी बहनों के साथ मॉडरेट किया और आपने अपने खुद के इंसाइट्स अपने आखिरी में दिए हमें, बट आपने दिए तो और उसके लिए भी शुक्रिया। हमारी बहनें काफ़ी अलग अलग स्टेट से, रिमोट एरिया से, गाँव से जुड़ी हैं। हमने कल भी प्रैक्टिस की थी, आज भी प्रैक्टिस की थी कि उनका नेटवर्क ठीक से चले, वो म्यूट अनम्यूट सीख पाएँ। तो आई थिंक वो सब देखते हुए काफ़ी अच्छा ये पैनल चलाया सबने। तो सेवा भारत की टीम का भी शुक्रिया, नीति आयोग का भी शुक्रिया और स्पेशली नीति आयोग नीति का जो मास्किंग इट कैंपेन है जिसके थ्रू वो हमें प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसका स्पेशली थैंक यू। और आई होप कि हम ये कॉन्वर्जेशन सिर्फ एक शुरुआत समझें
कि बहनों की आवाज़ नीति के थ्रू और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बाहर आती रहे। कोविड से क्या उनको दिक्कतें आई हैं, उनका हल हम आप तक पहुँचाते रहें और साथ में काम करते रहें आगे भी। तो इसी के साथ थैंक यू और आई होप हम आगे भी मिलें। थैंक यू सो मच सलोनी। तो इस तरीके से आज हमने सारे एक दूसरे से बातें की है, अपनी समस्याओं के बारे में और भी लोगों को बताया। आई होप कि हम दूसरे के लिए भी एक सोल्यूशन दे सकें। उनके इस जो मुश्किल के दौर में हम उनके साथ हैं। साथ ही भारत सरकार भी हर तरीके से मदद कर रही है। सेवा जैसी संस्थाएं भी अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर हमारे ग्रामीण महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही हैं। इन्होंने जो आज हमें जो वेबिनार का मौका दिया है ताकि हम अपने व्यूज रख सके, इसके लिए आई रियली थैंक्स टू देम। Thank you so much for providing us this great opportunities for like Karnabhumi, Ruab and Lok Swasthya Mandali also. Thank you so much. Hello everyone. Thank you so much Razia ji and Saloni Ben for concluding today's webinar so beautifully. We thank all the panelists for taking out their time और उन्होंने जितनी मदद की है, effort डाला है ताकि वो internet से connect होके इस webinar पे रहें. They have dropped off a few times and they have come back because they wanted you to hear their side of the story. It is very important to us at the Women Entrepreneurship platform that we engage with more voices and understand the experience of more women-led businesses and the challenges that they face. I think we will conclude today's webinar on this point, hoping to keep this conversation going with all our partners. Thank you everyone for joining in. We will be sending out a post-webinar document with all the people who have registered for this webinar, so do look out for it. Thank you so much. Good evening. Thank you.